ठीक है, वी हैव गुड न्यूज। ठीक है, Vani Sharma has cleared Anand Rathi, and Saurav Sejure also has cleared lot of interviews off campus। ठीक है, सौरभ सेजूरे पहले आप बताइए आप कहाँ पर क्लियर किया एंड हाउ प्रोग्राम ऐसा ऑफ कैंपस किया, कैंपस का आपका इतना अच्छा नहीं गया एक्सपीरियंस है ना। ठीक है, हाँ बोलिए। Hmm. हम्म। Campus ka, sir, I'll tell you a bit about campus. Sometimes what they do is they post 50 vacancies and they have a criteria of shortlisting 10 times of the candidates. So they will shortlist 500 candidates. And out of those 500, they will send links to only 200, 250. Actually, out of those 250, they actually have to select only 5 to 10. So the actual vacancies are actually less than what they are showing in their campus portal. So this is the problem with campus. You cannot straight away, have your hopes on campus itself. So off campus is the क्या thing है? where if you are getting shortlisted, then there are actual vacancies. So they ऑफ won't कैंपस, waste their time ऑफ on. कैंपस इज प्योर हार्ड वर्क। ऑफ Yes, कैंपस yes, इज हार्ड वर्क yes. एंड लक, एंड कैंपस में आपका तो लक ज्यादा मेरे को लगता है। लक भी हाँ. चाहिए, हार्ड वर्क तो चाहिए हम्म. हर जगह, पर आपका लक भी बहुत ज्यादा ज्यादा जैसे फैक्टर ज्यादा। on campus, I had a few interviews, say at हाँ, 5 p.m., 4 p.m. So they have already selected few candidates which had interviews in the morning, 10, 11. Then your chances, although they are taking your interview, but your हाँ, chance is gone there. So हाँ, ऐसे भी जितना होता है. लेट होगा So आपका you need. कैंपस, हाँ. जितना लेट होगा ना कैंपस, उतना चांसेस कम है, बिकॉज वो लोग कोटा बना के आए, इतना हम्म. लोगों को लेना है। और डिपेंड ऑन हम्म. द इंटरव्यूअर मूड ऑल्सो। हम्म. उसका क्या मूड लेके आया है, वो भी हम देखते कभी हैं। कभी there's a lot of formality, like they'll take your interview but they are actually not interested to take the candidate or select the हाँ, candidate as such. तो वो ये भी डिपेंड बहुत करता है कौन सीन इंटरव्यूअर है ले रहा ऑन है। कैंपस। ये चीज हम हम्म. देखे है, लिंक वगैरह। so आपका ऑफ कैंपस कहाँ कहाँ पर हो गया? so off campus I was selected in Kotak Bank, one NBFC, that was a compliance role. Then there was one small firm which were into private equity venture capital. तो ऐसा एक हुआ था. And one was the credit rating agency. So I got around 4 to 5 offers off campus as such. ये कहाँ से लग रहा था ये सब, मतलब वैकेंसीज कहाँ से मिल रहा था? तो एक तो जो ग्रुप्स में आ रहे वो तो मेजर सोर्स था. देन देयर वाज लिंक्डइन एंड नौकरी. तो नौकरी एंड लिंक्डइन आर एटलीस्ट 50% वैकेंसीज वहां से आ रहे थे और कुछ कुछ ग्रुप से डायरेक्टली. ज्यादा करके कहाँ से आ रहा था? ठीक है, किस तरह का प्रोफाइल चाहिए सब आपका, प्रोफाइल? एक मिनट. एक मिनट, आई जस्ट पुट माय फोन ऑन साइलेंट. हाँ. हाँ, हाँ। So profile was a mix of both. So initially, what happened in the initial 10-15 days, I was trying all the domains as such. So internal audit, IDT, forensic audit. I've given all the interviews. But then, since I stay at Mumbai, so यहाँ पे थोड़ा एक advantage हो जाता है. You get a lot of vacancies or shortlisting as well. So later on, I focus mainly on finance related domain. क्योंकि मुझे मिल रहा था. If you are staying in say a different city, say in Pune or Delhi, then you should try all the domains as such. So after 15 days, mine was more focused on finance related only. So मेरा सिलेक्शन भी एक कंप्लायंस एक डिफरेंट डोमेन बोल सकते हैं, बाकी सब फाइनेंस रिलेटेड ही था. सो द जॉब दैट आई एम टेकिंग अप इज इन FP&A डोमेन. सीवी वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है? आपने जैसे हम लोग का किया था, कैसे हाँ. आपको हेल्प हुआ हम लोग से? वो कीवर्ड्स तो सर, दोज कीवर्ड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट because without that you won't get a shortlisting or interview as such. और अप्लाई And करना for कितना each जरूरी है? domain, yeah, each अप्लाई करना। domain you have to have a different CV as such. So particularly IDT के लिए different होगा, internal audit different CV होगा. उसको बता। So you have suggested like 80% if you are giving one interview say for internal audit, so 80% has to be there of internal audit. Otherwise there is very little chance of getting shortlisted. And और क्या पूछा था सर आपने? मटेरियल कितना पढ़ना पड़ता है, पढ़ना कितना पड़ा? हाँ. तो एक इसमें एक है जैसे first 15-20 days I was totally focused on your material itself. Then जैसे बाकी interviews देने लगा, then I used to search about those particular person as well. So that हम्म। particular person has a say stat audit background or having done articleship in Big Four. So you have to prepare according to that also. What he must be doing in his job. So the questions will be majorly related to what he knows in his job. Say if a person is doing stat audit, so he would ask you assertions or what is there in audit report, or say if you are given a PP to audit, what are the procedures that you will do to check PP?
So those kind of questions are also there. This can't be totally incorporated in any question bank that is there. These are personal experience related questions. So you have to prepare ऑब्जर्वेशंस, according to that as well. ऑब्जर्वेशन, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जर्वेशन। और अभी Hmm. आपने जो ज्वाइन किया उसका कितना प्रोफाइल है, अभी पैकेज कितना दे रहा है वैसे? यहाँ पे आई हैव गॉट 10 फिक्स प्लस वेरिएबल है sir. वेरिएबल ना, बढ़िया। और इसका मतलब इसमें किस तरीका का क्वेश्चन पूछ रहा था जनरली? सो दिस वाज मेजरली एसएफएम फाइनेंस रिलेटेड। सो उन्होंने डेरिवेटिव्स का पूरा ऐसे पूछा था, इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिकली डेरिवेटिव्स एंड ऑल। सो आई आल्सो हैव अ लिटिल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो मुझे वो काफी हेल्प हुआ। तो थियरी डेफिनेशन दे डोंट वांट एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन, दे जस्ट वांट वेदर यू आर प्रैक्टिकली एक्सपोज टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो वो काफी हेल्प हुआ। और सीवी में इवन आई हैड एफपीएनए एक्सपीरियंस, आई हैड 1 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सो वो एफपीएनए में ही था। तो दैट आल्सो हेल्प। सो फ्यू क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू एफपीएनए डोमेन एज वेल। तो इसलिए थोड़ा ये इजी पड़ गया क्रैक करने में। कॉन्फिडेंस तो इन स्पीकिंग एसएफएम कितना एंड जरूरी है, स्पीकिंग, स्पीकिंग yes, कितना जरूरी है इसमें, speaking. So कम्युनिकेशन स्किल्स? speaking you have to do daily, not even if you are present in this particular session as well. So I used to do my own sessions as well, the mirror speaking, that मिरर also. प्रैक्टिस जो बोला था मैंने, वो Yes, मुझे sir. क्योंकि Yes, इंग्लिश ये sir. लोग देखता है, फंबल हो गया तो Mm-hmm. गया, Yes, फंबल। sir. वो तो that is most important because see I gave my criteria of selecting any company was I wanted to go in a MNC company, and you are dealing with the foreign stakeholders. So यहाँ पे I have selected I've got selected in France MNC. So you'll be dealing with French people, or their major communicating language would be English. So there you would require, if you are not good at English, they won't entertain you as such. तो माई स्पीकिंग इंडस्ट्रियल बहुत ट्रेनिंग जरूरी वाज है। आल्सो यूके रिलेटेड एंटिटी, तो वहाँ पे भी थोड़ा मेरा प्रैक्टिस हो ही गया था। सो इंग्लिश वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी एज सच। बढ़िया, ठीक है। आप जैसे होगा ना तो और एंड भी जन को एक बार हेल्प करवा दीजिए। हाँ बोलिए, कुछ हाँ, बोल रहे थे? एंड एक एक एप्लीकेशन का भी मैं बोलना चाहूँगा कि डेली आई यूज्ड टू कीप अ टारगेट कि 10-15 मेल्स भेजने हैं। और पीपल स्क्रॉल टिकटॉक और इंस्टाग्राम, सो आई यूज्ड टू स्क्रॉल नौकरी लाइक दैट, नौकरी का ऐप। तो उस पे भी एटलीस्ट 20-25 एप्लीकेशन आई यूज्ड टू डू डेली। तो सिंस आई एम इन मुंबई आई माइट हैव गॉट a lot of shortlisting. So there was a day that I gave around 5 interviews in one particular day itself. सो उतने शॉर्टलिस्टिंग टाइप यहाँ पे होते हैं, बट इफ देर इज पीपल आर फ्रॉम अदर सिटीज तो दैट आई कांट हेल्प एज सच। तो यहाँ पे इट्स लाइक देर आर इनफ वैकेंसीज यू कैन से। इफ यू आर अप्लाइंग से फॉर लिंक्डइन 100, कहाँ यू पर विल मिला गेट आपको वैकेंसी? शॉर्टलिस्टेड टू 5 to 10। वैकेंसी कहाँ पर मिला? यहाँ पे मुंबई में हाँ, कहाँ पर मिला आपको? यहाँ पे आई इनिशियली आई गेव इन ऑल, मतलब फॉरेंसिक ऑडिट वो सब ट्राई किया था मैंने। एंड लेटर ऑन एवरीथिंग वाज फाइनेंस, मतलब एल&टी फाइनेंस, कोटक बैंक, देन एनबीएफसी 2-3। सो ये सब यहाँ तो खोजे कहाँ बहुत पर, वैकेंसी मिल रही। खोजा कहाँ पर अब? वो जे एक तो ग्रुप का थोड़ा बहुत, देन मेजर वाज लिंक्डइन एंड नौकरी। naukri.com ना, Yes. naukri.com बाकी इम्पोर्टेंट। there are others as well, IIM Jobs or Indeed, but majorly what I feel is I got more shortlisting through Naukri itself. naukri.com में कितना दिखाए थे सीटीसी? I kept it as 9, but then you can negotiate when you crack the interview. और क्या किए थे naukri.com में? नौकरी में I used to keep searching, जैसे CA fresher if you सर्च कर रहे put a थे? keyword, तो हाँ, तो डेली एटलीस्ट 20-25 एप्लीकेशन रहता ही था नौकरी पे। आप अप्लाई करते थे क्या वहां पर में जाके? हाँ हाँ, सब में। और अगर कुछ किसी का वहाँ पे भी, इफ यू हैव एनी ईमेल ऑन दैट और अ नंबर, देन आई यूज्ड टू फॉलो अप एज वेल। मतलब आप पूरा मतलब नौकरी में पूरा सर्च ही करते रहते थे बैठ के पूरा? हाँ, पूरा इंस्टा टिकटॉक जैसा रोज का ही था वो। है, ओके ओके, समझ गया। हम्म, लोग लिंक्डइन में टाइम बर्बाद करते हैं, आप मतलब नौकरी में कर रहे थे मतलब नौकरी पे था। पूरा। हाँ, और नौकरी में पूरा ये भी अप्लाई है, कर। हाँ जी, नौकरी। जैसे अभी तो आई wasn't prepared for this, you called lately, so हाँ, you can't keep your wire phone as such. मेरे हेडफोन पे चार्जिंग नहीं था, so I couldn't take that. So you have to look very professional when you are giving any interview. अगर हाँ, ब्लेजर है तो ब्लेजर पहन के करो। मैं बोला यही Even सब चीज that तो, has some, yeah, लेजर even टाई that वगैरह। affects the interview. It shows the interviewer that how serious you are for the interviewers. लेजर सबसे जरूरी है।
बढ़िया। हम्म। तो Naukri.com में ज्यादा इन्वेस्ट करिए टाइम। Naukri.com गिव्स द हाँ। रिटर्न। आपने लोकेशन में मुंबई लिखा था क्या जब आप हेडलाइन बना रहे थे तो? मुंबई पुणे टाइप ही लिखा था, मुंबई मुंबई ऑल पुणे एरियाज लिखा। एंड पुणे, बट मुंबई आई पुणे का डिडंट बहुत है अप्लाई इधर टू में। एनीथिंग। हाँ, मुंबई मैंने पुणे का मेजरली मुंबई कस्टमर है। दिया, घर का दिया ही नहीं मैंने। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एक बार आपका स्क्रीनशॉट है ना, हमको Naukri.com का मेरे को भेजिएगा। और हाँ, हाँ हाँ। फिर से आपका मैं एक बार देख लूंगा। Naukri.com मेन है, वहां से कॉल्स आता है सबसे ज्यादा। ठीक है, हम्म। बढ़िया। हम्म। बढ़िया। बाकी शिवानी सर। यू कैन हाँ बोलिए। फॉलो अप ऑन लिंक्डइन एज वेल, अगर कोई से ऑलरेडी काम कर रहा है पिछले अटेम्प्ट वाले वगैरह, तो यू कैन आस्क दोज पीपल एज वेल। तो मुझे उतना जरूरत पड़ा नहीं, बट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु गॉट द शॉर्टलिस्टिंग थ्रू दिस फ्रेंड्स रेफरल एज वेल। So if someone is working in say Genpact or say any big four, so ask them if there is any vacancy. तो वो भी help करता है. The job that I got रेफरल्स। was through a friend only. So हम्म। because he told me there is a vacancy in my firm, you can apply. So I applied through the friend. But the other shortlisting I got through LinkedIn or careers. लिंक्डइन नौकरी। बढ़िया। शिवानी शर्मा, आपका बताइए। तो मेरा तो कैंपस के थ्रू ही है हुआ है। हाँ, इसमें क्या क्या आपका पूछा था आनंद राठी में? वही सर जो आपने बोला था ना, वाई आनंद राठी हम्म। और फैमिली मेंबर्स, सिंपल ही क्वेश्चन थे। हम्म। बस निफ्टी 50 ये सब, व्हाट इज इक्विटी, जो भी आपके पीडीएफ में कवर्ड था सारा वही पूछा था। बढ़िया। आपका ऑफ कैंपस भी एक आया था पर आपने दिया नहीं। ग्रैंड थॉर्टन का आया था यस आपका ना, सर। अप्लाई करने से आता है, वही यस। मैंने बोला जैसे ना। कॉन्फिडेंस कितना जरूरी होता है आपको लगा? कॉन्फिडेंस लोग क्या दिख रहा था सर लोग? कॉन्फिडेंस तो, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, मतलब स्पीकिंग स्किल्स लाइक तुम्हारी कैसी है, कॉन्फिडेंस तो खैर अंदर डर तो नहीं रहे, लाइक बहुत सारी चीजें देखी थी बोलने में, लाइक तुम कंफर्टेबल हो, कैसे ज्वाइनिंग कब कॉन्फिडेंस से देख कर रहे हैं सकते हो ज्वाइनिंग कि के लिए। इन्फोसिस में भी हाँ। अभी आज इंटरव्यू हुआ है, ये लोग ज्यादा करके कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। और बिहेवियर कुछ भी पूछ रहा है पर कॉन्फिडेंस देख रहा है। वही कंपनी क्यों ज्वाइन करना है आपको? वही कंपनी क्यों हम्म। आप ज्वाइन करना चाहते हो, बाकी कंपनी क्यों नहीं? मतलब लॉयल्टी थोड़ा देख रहा है, वही प्रोफाइल में क्यों आया, क्योंकि बाकी जगह वैकेंसी नहीं था इसलिए आ गए आप इसमें, कि मतलब आपको सीरियस था ये कंपनी को लेके। समझ रहे हैं? ये सब चीज ही था, बढ़िया। ठीक है, आनंद राठी में आपका हो गया। और अपने ऑफ कैंपस भी जैसे होता है ना, ग्रैंड होटल में जैसे आपने वैकेंसी अप्लाई किया, और कुछ आप बोलना चाहोगे? हम्म। देख क्या चीज जरूरी आपको लगा शिवानी, सर इसका सर हेल्प किया? जैसे आपने बताया ग्रूमिंग, लाइक मतलब प्रॉपर फॉर्मल्स से पहन के बैठना है पूरा, वीडियो कैमरा वगैरह सारा मतलब सेट होना चाहिए, मतलब पूरी हम्म। इमेज तुम्हारी आ रही है, आई हम्म। कांटेक्ट जैसे उसमें कैमरा, जिस कैमरे में देखना है, ये हम्म। सारी चीजें, मतलब जो छोटी छोटी चीजें जो आपने बताई थी सारी। ये सब चीज को वही। अच्छा करने का कोशिश करिए, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनलिज्म ही देख रहे हैं। और वही चीज अप्लाई करते जाइए जितना जल्दी हो सके। सौरभ, आप कुछ और बोलना चाहोगे? हाँ सर, so they also ask why this particular domain and why this only this company, तो वो सब भी important है, and where do you see yourself in 5 years, तो why should we hire you, तो ये सब behavior questions भी important है। तो इसका you can't prepare on the spot, you have to practice it before and only। तो वहाँ पे if you fumble or if you give them an impression that you are answering it here itself, then it is a problem। प्रैक्टिस तो चाहिए। ये सब का पहले ही करो, हाँ प्रैक्टिस। बढ़िया बढ़िया। ग्रेट, आप लोग हेल्प करते रहिएगा, सौरभ ठीक है, एंड शिवानी ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए तो देखिए, एक दूसरे का हेल्प करेगी तो जल्दी जल्दी सबका लग जाता है। इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज होगा ना, आप वैकेंसीज वगैरह होगा सौरभ तो मेरे को भेज दीजिएगा। बाकी कोई होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे आई थिंक दिव्या, आई थिंक यू आर फ्रॉम पुणे राइट? दिव्या वीडियो ऑन कर लीजिए, दिव्या। हाँ, सब जन वीडियो ऑन, गौतमी, मोस्ट ऑफ देम पुणे से है। वीडियो ऑन कर लीजिए, प्रियांक, रितिका ठीक है। और कौन है पुणे से? पुणे से दो तीन जन है, गौतमी इज फ्रॉम पुणे, दिव्या आई थिंक नजरबाग वाली फ्रॉम पुणे राइट। उनका जो फ्रेंड No, है sir, I am वैष्णव। not from Pune. पर पुणे देख रहे हैं ना आप, ज्यादा करिए मुंबई पुणे। आप Sir, तो मध्य प्रदेश से, हमको पता है। district Pune देख रही हूँ, but I am पुणे not देख from रहे हैं, Pune. हाँ तो पुणे का ही ये सही है अभी। आप बस पुणे का है सीधे सीधे? पुणे, नो मुंबई, सर, आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई। मुंबई पुणे पर आपका इलाका का मतलब वो है मतलब ना, मुंबई पुणे हाँ, ज्यादा दूर बिकॉज नहीं है। आई हैव फ्यू रिलेटिव्स इन पुणे, सो हाँ हाँ, वहाँ पे भी चल जाता, बट मुंबई मेजर नाइन्टी पुणे में, परसेंट आई गिव इंटरव्यूज इन मुंबई ओनली। मुंबई पुणे में करवा दीजिएगा। मुंबई पुणे, गौतमी मुंबई पुणे ठीक है। और एक आपका वैशाली, वो भी तो उधर पुणे ही देख रही है, पुणे ठीक है। पुणे वाला ज्यादा है यहाँ पर में। साउथ वाला केरला का एक है ठीक है, दिल्ली का है। सबसे कही। अमित सैनी, आप कहाँ से हो? जयपुर?
यू आर फ्रॉम जयपुर। हाँ जी, म्यूट में हो भाई, म्यूट में, वीडियो ऑन। हाँ, सर आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान। राजस्थान, वो जयपुर अलवर राजस्थान ही राजस्थान है। सर। अलवर राजस्थान, कोटा। हाँ जयपुर के पास ही है। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया है। शिवानी शर्मा, आप कहाँ से हो से? यूपी? ऐसे दिल्ली मतलब, हाँ। दिल्ली, दिल्ली। प्रिंस थॉमस दिल्ली। केरेला। निधि चार, आप दिल्ली? प्रिंसी शर्मा इस दिल्ली। ऑल ओवर सर इंडिया। आगरा से हूँ मैं। दिल्ली आगरा एक ही तो हो गया ना, दूर है क्या? राजस्थान ना, वही तीन चीज सौ है। किलोमीटर दूर है सर। ओके। और प्रियांक, तुम मुरादाबाद? मुरादाबाद। वरुण शर्मा, तुम कहाँ से है? वरुण शर्मा, वीडियो ऑन रखो ना आपको, दिल्ली वीडियो से के हूँ। बंद। दिल्ली हाँ, से हूँ। जी जी जी। दिल्ली। तो सर ऑल ओवर इंडिया दिल्ली वही से हूँ चीज है। सर मैं। देखिए आप लोग है ना, जो दिल्ली का है दिल्ली में रहिए। देखिए, जो दिल्ली वाला दिल्ली में रहता है, पुणे वाला पुणे देखता है, साउथ वाला साउथ देखता है, यस सर। कलकत्ता वाला कलकत्ता देखता है। तो जान जाइए भाई कौन कहाँ का है। ऐसे करके थोड़ा सा जल्दी होगा काम। समझ में आ रहा है? तो ये भी रखिए। देखिए, मेले तो ये नहीं सोचिए कि भाई मेरे को यही लोकेशन चाहिए। पहले तो ये कोशिश करिए कि एक ऑफर लेटर कहीं से भी आ जाए। तुम दिल्ली का है तो भाई, बेंगलोर का आ रहा है तो तुम ना नहीं कर सकते कोई भी ऑफर लेटर के लिए, राइट? है ना? तो ऑफर लेटर लक्ष्मी है, राइट? लक्ष्मी को ना नहीं करना चाहिए। पहले तो लक्ष्मी दिया हो। उसके बाद तुमको अब जो घर के बगल में मिलना है उसके लिए यहाँ पर दोस्ती रखो। इधर उधर मिलते रहेगा तो हो जाएगा काम। बात समझ में है? जॉब वैकेंसी है, कमती है सब जगह, दैट्स द ओनली थिंग। कमती कमती रहता है सब जगह। तो जितना नेटवर्किंग करते रहेंगे उतना ज्यादा पढ़ाई करके फायदा नहीं है। जितना नेटवर्किंग करके है, नेटवर्किंग जरूरी है। कॉल आने का तो आपको पढ़ने का टाइम मिल ही जाता है। कितना टाइम मिलता है सौरभ पढ़ने का? पढ़ने का कितना टाइम लगता है सौरभ? मिलने कितना टाइम मिलता पढ़ने है का पढ़ने it के? depends how many vacancies are there, but at least they give 1 or 2 days at least. But if you have multiple interviews in a day, so मेरे केस में जैसे एंड में फाइनेंस हो गया था, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल कि मैं एक दिन में दे भी दूंगा, बिकॉज 70-80% ऑफ द क्वेश्चंस यूज्ड टू कीप रिपीटिंग देन, क्योंकि देन आई वाज फोकसिंग ओनली ऑन वन डोमेन, तो मुझे वो भी आसानी से हो जाता था एडजस्ट। बट नॉर्मल अगर 4 दिन दे देता डिसेंट है वैकेंसी आप पकड़ इंटरव्यू रहे हो शेड्यूल तो में, वन टू 4 टू दिन डेज देता है लोग। 4 दिन दे देता नहीं, है चार मामले दिन से। तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो 1-2 दिन तो मिल जाता है। 2 दिन देता है ना? दो हाँ, दिन दे देते हो लोग। 4 दिन मांगेगा तो दे तो देगा, रिक्वेस्ट करने से नहीं। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करेगा कर तो सकते चार। हो, बट इवन दे वांट टू फिल द वैकेंसी, इफ दे हैव अनदर कैंडिडेट हु वांट्स टू गिव इन 2 days, देन यू विल फॉल बैक। 2 दिन काफी होता है पर, ये आप लोग अभी तक तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लिया है। हाँ हाँ कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लिया है, राइट? और 2 दिन काफी होता है, 48 घंटा। तो मेन चीज है, हाँ, इट मोर देन दिन इनफ, जाओ के एक अप्लाई दिन करना। से ज्यादा आप कितना अप्लाई किया था? चल जाए। आप कितना जॉब में अप्लाई किया था? मेन दैट इज ऑल्सो वेरी 100 से तो ज्यादा ही है सर, और ऐसे 100 से काउंट ज्यादा नहीं किया? किया। 100 से हाँ, ज्यादा है, सोचिए। 100 से ज्यादा अप्लाई किया है। 100 से ज्यादा अप्लाई किया। अब आप लोग कितना फोर्टी अप्लाई फिफ्टी करते हैं देख लीजिए। मतलब हाउ मच यूर अप्लाइंग? 15 से। अप्लाई कितना करते हैं ये सबसे जरूरी है। अब आप समझ, हाउ हाँ, मच यूर अप्लाइंग, आप लोग देखिए अब। अप्लाई कितना करते हैं आप लोग, ये पोल करता है ये वाला। हाउ मच वैकेंसी यू आर अप्लाइंग, दिस इज अ वेरी गुड थिंग है। आप 100 से ऊपर अप्लाई किए हैं। तो इंटरव्यू आया अराउंड 15 से 20 का, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इनटू 4 to 5, ऐसा रेशियो। देखिए, मतलब आप 100 से ऊपर किए हैं, ठीक है। एक होता है मोर देन 100, एंड एक करता है इसमें पोल से पता चल जाएगा। 100 to 500, लेस देन 20। अब आपको पता चलेगा आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। पोल करिए इसको ऑनेस्टी के साथ, आप कितना अप्लाई कर रहे हैं। रिजेक्शन हुआ आपका? हाउ मेनी रिजेक्शन यू फेस सौरभ? नहीं हुआ? मोर देन 50% सर, यू गॉट क्योंकि रिजेक्टेड 50? मल्टीपल राउंड्स होते हैं ना, आप कितना रिजेक्ट बिकॉज कितना बार हुआ? एवरी मोर देन 50%, क्योंकि ऐसे आई टोल्ड 51 यू आई नंबर, गॉट नंबर्स में बताइए, इंटरव्यू। नंबर्स में कितना बार रिजेक्शन हुआ हाँ, आपका? तो 15 से 20 इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुआ, बट ऑफर एंड में 4 to 5 का ही आया, तो ये रेशियो इज इट सेल्फ अराउंड 33%। तो ओके उतना ओके। रिजेक्शन ही है ना, तो एक 10 तरीके से। रिजेक्शन आपको सामना करना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो ये सब सीखिए ना। यस। लोग का एक रिजेक्शन हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन। ओके, हाउ मेनी टाइम्स यू गेट रिजेक्टेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसलिए मैं बोला ना, इनका देखिए 10 बार रिजेक्शन हुआ है तब जाके एक इंटरव्यू, 4 इंटरव्यू क्लियर हुआ है। दिस इज ऑल्सो वेरी, हाउ मेनी टाइम्स यू अप्लाई एंड हाउ मेनी टाइम्स यू गेट रिजेक्टेड। आपका 1-2 रिजेक्शन होता है, आपको लगता है सो गया। आपका दुनिया खत्म। ऐसे ये नहीं होता है। एक दिन को ये यहाँ पर हो गया तो वही और सो गया। दिस इज ऑल्सो और वेरी सब वो इंपॉर्टेंट। 100 जो अप्लाई रिजेक्शन किया, होता तो और आपको उसमें भी फीलिंग तो खराब आता होगा।
बहुत खराब नहीं, लगता वो होगा। तो सिंपल मैथ्स है सर, मुझे पता था कि जितना ज्यादा मैं अप्लाई करूंगा उतना ज्यादा चांसेस है शॉर्टलिस्ट होने का। जो 100 जगह अप्लाई किया तो उसमें भी आई गॉट अ चांस टू गेट इंटरव्यूड अराउंड 15 to 20 ओनली। तो 80% वो भी रिजेक्शन ही है। तो ऐसे नहीं, एक कंपनी पकड़ के नहीं रहना चाहिए। तो बात सही है, पर जब रिजेक्शन होता है तो यू डोंट फील गुड ना, तो कितना दिन खराब रहता है मूड, वो कि नहीं होती एक कोई दिन फर्क तक चलता है। नहीं नहीं, इवन आई एम ह्यूमन, तो मुझे भी बुरा लगता है। तो एक दो नहीं। दिन तक ठीक है, आप जितना रोना है रो लो। बट अगर मल्टीपल इंटरव्यूज है तो उतना भी चांस नहीं मिलता है। एक बात दे, जैसे आपने सिलेक्शन आपका जब पहला हुआ था उससे पहले आप कितना बार रिजेक्ट हो चुका था? हाँ, उसके पहले भी लगभग 4-5 जगह रिजेक्ट हुआ था। 4-5 बार रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद एक सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर सीए फर्म्स। तो उसमें मतलब दे गेव मी ऑफर विद इन हाफ एन आवर इटसेल्फ। अगर वो अच्छा गया तो वहां से जो कॉन्फिडेंस चालू हुआ। फिर वो मतलब एक यस, ऑफर लेटर इज दिस इज योर। अ वेरी या। इंपॉर्टेंट थिंग, मैं वही बोलना चाह रहा था। देखिए, पहले आप लोग टफ टफ देते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। इजी इजी हाँ। इंटरव्यू दीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा मैटर, मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप मोमेंटम को ड्राइव करेंगे, आप छोटा छोटा इंटरव्यू देंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पैसा तो उतना ही देता है सब जन, आप ध्यान देंगे तो, राइट। थोड़ा 19-20 लाख यस रुपए सर। कम हाँ, मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस ऑफ गेटिंग द फर्स्ट ऑफर लेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग द फर्स्ट ऑफर लेटर, एक ऑफर लेटर जब आपको मिल जाता है ना, फिर आप देखना आपका तकदीर बदल जाता है, फिर आपका ना धीरे धीरे दिन सही हो जाता है, अपने आप सब कुछ सही होने लग जाता है। देन तो यू एक इट्स, हाँ, हाँ, यू इट्स स्टार्ट मोमेंटम। गेनिंग कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, खुद पे। हाँ, हाँ, खुद पे भरोसा होने लगता है कि हाँ कुछ तो। be it big or small, getting offer letter in mail is very important. Be it big or small, getting offer letter is very important in mail. तो इससे क्या होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अगली की टाइप का हो जाता है कि चलो, कि हाँ, हम भी निकाल और आपका जब इंटरव्यू क्लियर नहीं होता ना 4-5 बार, तो आपको फिर मेरे से नहीं होगा लगता है। ऐसे ही वाला भी आता है कि अपना लगता है किस्मत में नहीं लिखा है, तो वो वाला फीलिंग रहता है। इसलिए हाँ। भले आपको ज्वाइन करना हो चाहे नहीं करना हो उधर में, हम्म, इंटरव्यू दीजिए, वो ऑफर लेटर मेल तो में लेके आइए, तो कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ जी, क्या चीज? वो इनिशियल 15-20 डेज में ना बहुत बुरा लगता था। देन जो हम्म, फर्स्ट क्लियर हुआ ना, देन आई वाज कॉन्फिडेंट कि भाई रिजेक्ट भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आ जाएगा, इफ आई अप्लाई इन नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ कंपनीज, देन आई विल गेट शॉर्ट लिस्टेड। इंटरव्यू के बाद तो मेरे हाथ में है। तो बाद में हम्म। एक ऑफर लेटर के बाद यू गेट डिफरेंट कॉन्फिडेंस, फिर क्लियर हो जाएगा। मैं भी आपको मोटिवेट भी किया था बहुत बार। हाँ, तो वही चीज है, एक दो आपका होगा इस तरीका का चीज, आपको टेंशन नहीं लेना है ये सब चीज को लेके, क्योंकि ये सब कॉमन है। पर एक चीज है, अप्लाई का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अप्लाई का रेशियो। एक दिन में कितना अप्लाई करते थे आप, फिर भी मोटा मोटी ऑन एन एवरेज? मतलब दोनों डिफरेंट था। कभी मैं मेल पे फोकस करता था, रोज का 10-15 मेल। कभी सिर्फ नौकरी फोकस करता था, नौकरी का वो तो खाली अप्लाई उधर ही दबाना है। तो उसमें तो 10-15 वहाँ पे भी हो ही जाता था डेली का। नौकरी तो 20 तक भी जाता था डेली, क्योंकि वो उधर इतना पूरा लिखना वो सब नहीं है ना, जस्ट अप्लाई क्लिक करना है। और लिंक्डइन, लिंक्डइन में मैसेज किया आपने लोगों को? लिंक्डइन पे देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दैट आर देयर। एक तो इजी अप्लाई वाला एक है, और फिर वो कंपनी वेबसाइट पे जाता है। तो कभी हाँ, हाँ, कभी हाँ, करियर पोर्टल पे भी रिडायरेक्ट कर देता है, वहां पे बड़ा हाँ, फॉर्म रहता है। तो वो वो बड़ा अगर होता है। बड़ा फॉर्म रहेगा तो तो दिन में 2-3, तो वो हाँ, थोड़ा बनता था टाइम इजी लगता है। अप्लाई। हाँ। हाँ, इजी उससे अप्लाई कॉल तो आता है? तभी कर। उससे कॉल आता है इजी हाँ। अप्लाई करने से? हाँ, एक एक जैसे आई टोल्ड यू, वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी वाला फर्म था एक। तो वो इजी अप्लाई से ही मिला था मुझे जॉब। बट आई डिडंट हैपन टू जॉइन देम एज सच, बट वहां से मिला था। पढ़ाई कितना घंटा करते थे, क्या अप्लाई पढ़ाई ज्यादा मतलब किया आपने? एटलीस्ट नहीं, मतलब अप्लाई तो फर्स्ट फोकस था, बिकॉज इफ यू आर फर्स्ट नॉट फोकस गेटिंग अप्लाई, शॉर्टलिस्टेड दैट्स व्हाट आई तो से ना, अप्लाई करना इंटरव्यू ज्यादा चांस ही जरूरी नहीं है। है। हाँ, इंटरव्यू चांस ही पढ़ाई नहीं कितना मिलेगा घंटा तो करते थे? पढ़ाई का क्या। पढ़ाई वो 3 to 4 hours डेली। पढ़ाई जब मूड खराब होता था तब करते थे? नहीं नहीं, ऐसे कंसिस्टेंट ही था बहुत, जैसे हाँ? नहीं, सीए कितना घंटा सीए के पढ़ते थे? एग्जाम्स के टाइम भी। अभी तो 3 to 4 hours था। जैसे एग्जाम के टाइम डेली वी थ्री यूज टू टू फोर स्टडी। आवर्स हाँ, तभी वो कंसिस्टेंसी यहाँ काम आया। तभी भी मूड खराब रहता था, बट आई यूज टू स्टडी 10 to 12 hours, क्योंकि मैंने बहुत ग्रुप दे के क्लियर नहीं, किया था। रिजल्ट के तो बाद कितना उतना घंटा लगता है। पढ़े डेली का? रिजल्ट के बाद कितना घंटा हाँ, पढ़ा है? अभी बताओ। इंटरव्यू के लिए 3 to 4 hours, 3 to 4 hours। एवरी डे ना? 3 to 4 आवर्स यस एवरी सर। डे, मॉर्निंग नाइट उस तरीका से। और अप्लाई कितना घंटा हाँ, करते थे? अप्लाई पूरा दिन ही, मतलब ये अगर पढ़ाई नहीं बहुत कर ज्यादा। रहा हूँ तो अप्लाई कर रहा हूँ।
देख लीजिए, ये सब करना जरूरी है। आप लोग उल्टा करता होगा, आप लोग पढ़ाई ज्यादा करते हैं अप्लाई कम हाँ करते हैं। आप लोग क्या हाँ लगता है मेरा आर्टिकलशिप खराब है, चलो पढ़ते रहते हैं बैठ के। फायदा नहीं है ना तुम्हारा इंटरव्यू, फिर तुम ज्यादा पढ़ाई कर लेगा नजर लग जाएगा, फिर तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। हाँ। मान के तुम ऑडिट ज्यादा पढ़ लिया और इंटरव्यू का पहले ऑडिट का शेड्यूल ही नहीं होगा, ये भी हो सकता है फिर तुम लगे पहले मेरा टाइम शॉर्ट बर्बाद हो गया। हाँ। हाँ, तो पहले शॉर्टलिस्ट होना, इंटरव्यू शेड्यूल करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ पढ़ाई थोड़ा क्योंकि 19 वैकेंसी 20 भी खत्म हो चल जाता है, जाएगा। वैकेंसी खत्म हो हम्म, जाता है। और एक बार इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है उसके बहुत फटाफट पढ़ना पड़ता है, स्पीड बढ़ाना पड़ता है ना हाँ। पढ़ने का। सांस लेने का टाइम नहीं देता, सांस मेरा लेने डेली नहीं। कंसिस्टेंसी था ही ना, तो मुझे दिन भर भी, मैंने जैसे बोला था 5 हाईएस्ट गया था मेरा। तो वहां पे कहाँ आपको पढ़ने मिलेगा? तो थोड़ा बैकअप तो रहना चाहिए कि तो आपने एक बात थोड़ा बहुत बताइए, पढ़ा नहीं है। सीवी जो बनाए थे आपने, तो सीवी एक तो नहीं हम्म। बनाया, सीवी थोड़ा सा आप चेंज करता था क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन देख के थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेते, थोड़ा ऐसे किए? हाँ, थोड़ा एक दो उनका जो कीवर्ड्स है वो डाल देता था मेरे इसमें, तो उससे भी थोड़ा शॉर्टलिस्टिंग का होता है, फर्क थोड़ा थोड़ा पड़ता है। चेंज करते रहते थे। नौकरी प्रोफाइल में थोड़ा हम्म। सा चेंजेस किए डेली? नौकरी पे सर एक ऑलराउंडर सीवी रखा था, वहां पे उतना नौकरी में कुछ नहीं अपडेट देखते करते वैसे। रहते थे क्या डेली? अपडेट 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 अपडेट, H2 अपडेट डेली करते? नहीं, इफ यू कीप अप्लाइंग डेली तो वो ऑटोमेटिक आपको रिकमेंडेशन भी आते रहते हैं। ठीक है, वहां एक पे चीज मैंने है सीवी कि चेंज नहीं किया आप है। छेड़ते रहता था Naukri.com को, दैट्स वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। हाँ। हाँ एक भी छेड़छेड़ी दिन कर रहे हैं ऐसा ना, नहीं तो था इससे कि क्या होता है नौकरी कि ऑफ वो है। हाँ Naukri.com को लगता है एक्टिव आदमी है, तो आपको कॉल आने लग जाएगा। हाँ हाँ। पेड सब्सक्रिप्शन ले नहीं रहा नौकरी का नहीं नहीं ये नहीं, पेड वगैरह कुछ नहीं लिया। लिंक्डइन प्रीमियम लिए, लिंक्डइन प्रीमियम? लिंक्डइन वो वन मंथ फ्री वाला लिया था। वो फायदा हुआ उससे? हाँ, इनिशियली हुआ, बट ओके, नहीं भी होता तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है नहीं। ठीक है, तो इसलिए Naukri.com जरूरी है, अप्लाई करना जरूरी है। और अप्लाई अगर आप मैं तो मुझे ये बोलो, अगर आप 100 200 500 जगह अप्लाई करेंगे, कितना किस्मत खराब होगा आपका कि एक ऑफर लेटर नहीं है। 100 से 500 जगह अप्लाई करना पड़ता है। और जॉब है ना, जॉब के लिए क्या सर्च करते थे Naukri.com में? सर्च क्या मारते थे? सीए जॉब्स? जॉब नहीं, जॉब का आई वोंट लाई, मुंबई में तो इनफ अपॉर्चुनिटीज है, बाहर का भाई में? मुझे उतना आइडिया नहीं है। से जैसे आई हैव हर्ड कि दिल्ली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पे, हाँ, इवन कैंपस शॉर्टलिस्टिंग आर वेरी लेस। वो तो तो होता ही नहीं एकदम है। क्लियर आइडिया मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मुंबई में तो है इनफ तो अपॉर्चुनिटी। सर्च क्या करते थे? सीए जॉब्स दिल्ली, सीए जॉब्स मुंबई लिखता होगा Naukri.com में। नहीं, नौकरी में तो लोकेशन वाइज ही ना, तो मैंने मुंबई ही डाला था, पुणे डाला था, तो वहां हम्म, पे नीचे लिख के आता है कि ये जॉब है समझ कहाँ का। गए। और फिर मुंबई अप्लाई का है कर तो देते सीधा अप्लाई। जाके, फिर अप्लाई अप्लाई हाँ, अप्लाई सीधा मार अप्लाई। देते। हाँ मेरे हाँ। हिसाब से आप जो अप्लाई करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इसमें अप्लाई किए, आप देखिए कंपनी में कोई आपका जान पहचान का भी आदमी है क्या? तो अगर जान पहचान का कोई आदमी निकल रहा है तो उससे भी आप रेफरल कराने का कोशिश करें तो ज्यादा काम कर सकता है वो। लिंक्डइन में भी जब हाँ। आप इजी अप्लाई करते हो ना, तो इजी अप्लाई करने से ना कॉल आए से ये पता नहीं। और अगर मान के चले, मान के चले डिलॉयट है, तो आपको लग रहा है मेरा चाचा बैठा है डिलॉयट में, तो उसको भी एक बार बोल दीजिए यहाँ पर मैं सर एक वैकेंसी है, तो इधर आप थोड़ा सा हमको रेफरल करा सकते हैं क्या? जॉब आईडी हम्म इसको पकड़ा दीजिए, टाटा स्टील में वैकेंसी है, जैसे हम लास्ट टाइम जिनको बोला था टाटा स्टील हम्म में वैकेंसी है। टाटा स्टील में मेरा भी कोई पुराना स्टूडेंट होगा, तो उसे हो जाता है। ग्रैंड टोटल में वैकेंसी है, तो हमको पुराना स्टूडेंट देहरादून का बैठा है, तो कर देंगे। तो मेन चीज आप वैकेंसी देखिए, टाटा स्टील में वैकेंसी जीएसटी प्रोफाइल में निकलता है। आप देखिए टाटा स्टील में वैकेंसी हम्म है कि नहीं है, जॉब आईडी मेरे को दे दीजिए, हम उसको आप रेफरल किया, हम्म टाटा स्टील में रेफरेंस ही कॉल आता है। गोल्डमैन सैक में हम्म, रेफरेंस से जल्दी कॉल आएगा, पोर्टल में अप्लाई करने से हाँ शायद आए नहीं आए पता नहीं है, रेफरेंस चाहिएगा आपको। तो आपका कोई कोई भी अ, रेफर कर देगा ना, कोई भी इंसान रेफर कर देगा तो कॉल तो आ ही जाता है। कोई का रेफरेंस कराना हाँ पड़ता है को आपको, जॉब आईडी कोड देना पड़ता है उसको खोज के, जॉब आईडी कोड, है ना? you just mentioned Goldman, so I had given interview of Goldman as well. हम्म, That was through Easy Apply, LinkedIn. आ रहा बट है कॉल, वो बहुत शेड्यूल इनिशियल हो रहा फेज है। में आया था। हाँ नहीं, वो विद इन 7 to 10 days आफ्टर रिजल्ट आया था, तो वहाँ पे आई वॉज वेरी अंडर प्रिपेयर्ड, तो वो क्लियर नहीं हुआ मेरा, बट अपॉर्चुनिटी तो मिला एटलीस्ट कि गोल्डमैन में इंटरव्यू दे के आओ। तो वो इजी अप्लाई गोल्डमैन वाला में तो मैं लिंक्डइन बोल वाला रहा था। हूँ ना, आप लोग गोल्डमैन में अगर गोल्डमैन का आदमी को पकड़ेगे ना, प्लीज रेफर कर दो, वो हाँ। बोलेगा जॉब आईडी दो मेरे को, जॉब आईडी दो, हम्म जॉब आईडी इसको निकाल के आप दे दोगे ना, वो रेफर कर देगा, आपका कॉल शेड्यूल ऑलमोस्ट करवा सकता है। पर हाँ और टफ इन होता है सब इंटरव्यू टफ। का हाँ, इन सब का यू कैन स्क्रॉल दर करियर साइट एज वेल। वहाँ पे यू पुट इन वैकेंसी या कीवर्ड्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वहाँ पे भी अगर होगा उधर वैकेंसी तो वहाँ पे हाँ भी दिखा देते जेपी हैं। मॉर्गन वगैरह में वैसे करके, हाँ वैसे ही हाँ। करके आप लोग खाली एक जगह बिग फोर करेंगे तो फिर हो गया। हम्म। तब दिक्कत है, सब जगह दिखना पड़ेगा ना, मार्केट पूरा दिखना पड़ेगा। बैंक में भी जॉब्स है, बैंक में काफी जॉब्स होता है। बैंक आप देखिए तो बैंक कैसे बैंक का जॉब्स में कैसे मिलता है, कोटक हाँ, बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का। बैंक में
वो भी लिंक्डइन पे पीपल पोस्ट द वैकेंसी और कांटेक्ट दिस पर्सन ईमेल, वहां से मिला था। और ईमेल में अभी जाके फिर रिसेंटली लिंक्डइन में जाके जो, अप्लाई करिए उससे। हाँ, और अभी रिसेंट थोड़ा एक क्रेडिट मैनेजर करके फील्ड है, तो वहाँ पे बहुत बल्क हायरिंग हो रहा है। तो अभी अगर भी हो रहा है इफ ना? एनीवन इज इंटरेस्टेड, हाँ अभी भी है। जैसे अभी L&T फाइनेंस का दे हैव मतलब टेकन अराउंड 15 to 20 पीपल इन दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। मुंबई में। हाँ, so I gave L&T Finance for credit manager, but they just scroll through my profile and they saw FP&A. So they said, if you look like you are more interested in finance FP&A related profiles, ओ, and we'll call you if you have a vacancy in FP&A. So that time I got a bit dejected कि अरे यार, मतलब चांस ही नहीं दिया, कुछ बोलने ही नहीं दिया। बट आज ही प्रोफाइल मुझे देख लेते हो। L&T फाइनेंस का भी, हाँ, L&T फाइनेंस का FP&A के लिए कॉल आया था, बट मैं ऑलरेडी सीवी देख लेते कहीं लोग पे, अच्छे से। सीवी हाँ में आप कुछ भी लिखोगे ना, सीवी में जैसे हाँ आपका प्रोफाइल है ना, आपका जैसे ऑडिट है, ऑडिट में आप लिख दिया फाइनेंशियल मॉडलिंग किया है, तो उसका सवाल मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग क्यों किया। अब क्रेडिट मैनेजर है तो कुछ हाँ, भी वो देख लेना, उल्टा उल्टा चीज जो उसका प्रोफाइल से लेना देना नहीं वही, है, तो उधर अगर कर मैं देता है। क्रेडिट मैनेजर रिलेटेड कुछ लिख के जाता और थोड़ा बाकी का हाइड कर देता या फिर 20% लो 30% लॉयल्टी रखता, देखता है, तो आई वुड हैव गॉट अ पैशन एंड चांस। लॉयल्टी फॉर हाँ। द प्रोफाइल। इसलिए सीवी बहुत असली हम्म। चीज है, पैशन एंड लॉयल्टी फॉर द प्रोफाइल देखता है। मतलब ये हम्म। पैशनेट है कि नहीं है, ये पूरा ये काम के लिए बना है, और आप बहुत ज्यादा हम्म। फर्दर एमबीए परसुइंग, सीएफए परसुइंग, देख के हाँ, आनंद राठी में सीएफए करेंगे तो उसको पसंद आएगा। बिग फोर में आप सीएफए करोगे तो भाई सीएफए का क्या दरकार है। बात समझ रहे मोस्टली हैं? 80% ऑफ द फर्म्स और इंडस्ट्री दे डोंट वांट यू टू डू एनी अदर कोर्स, मतलब फिर हम्म, ये दूसरा कोर्स करके जंप मार लेगा, तो दैट इज द हाँ इम्प्रेशन राइट दैट राइट। दे गेट। आपका फाइनेंस डोमेन होगा जिसमें आनंद राठी है, या कोई ये लोग को हम्म। सीएफए पसंद आता है, सीएफए करने से आपका हाँ। प्रमोशन भी हो जाता है। जो आनंद राठी हम्म। में घुसेगा ना, वो सीएफए कर लेगा, उसका प्रमोशन कर देते लोग। ठीक वहाँ है। पे यू कैन ऑल्सो से दैट आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्ट कोर्सेज, NISM कोर्सेज एक्सेट्रा। तो वहाँ पे और एडिशनल पॉइंट्स आपको ऐसे मिल सकता है इंटरव्यू में, क्योंकि उनको दिखता है ना यू आर इंटरेस्टेड इन कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्रोफाइल। तो वो इंटरव्यू के हिसाब से यू हैव टू चेंज और टेल देम व्हाट योर इंटरेस्ट इज। बढ़िया। ठीक ठीक है सौरभ जी, ठीक है। आप थोड़ा और हेल्प करते रहिएगा, जैसे गौतमी है, ठीक है, एक दो जन और है, ठीक है, और हम बोल देंगे करके, आप हेल्प करते रहिएगा जो भी होगा ना, जो भी है। कोई भी हेल्प चाहिएगा बोल दीजिएगा इनको, ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दूसरे का हेल्प करिए तब जल्दी जल्दी जॉब लगेगा, ठीक है। हम वही चाहते हैं सबसे जल्दी जल्दी जॉब लग जाए, तो इसमें चाहिए अप्लाई और हेल्प, दोनों चीज जरूरी है। ठीक है, सेम लिंक में आप लोग आ जाइए, ठीक है सौरभ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।